Dear student, today we are going to start very important poem, The Abbot of Canterbury by Anonymous. Anonymous means unknown poet. Anonymous means unknown poet, and this poem is very important from examination point of view. So let's start the poem, Abbot of Canterbury by Anonymous, by unknown poet. Poet का नाम नहीं बताया गया है, तो हम इसको जो है start करते हैं. Now see, we are going to start poem from the first paragraph. King John and the Abbot of Canterbury by Anonymous. By Anonymous means unknown poet. Now we are going to start first paragraph, reading of the first paragraph. An ancient story I'll tell you anon of a notable prince that was called King John. And he ruled England with men and with might. Man and might कहते हैं by force rule करना. For he did great wrong and maintained little right. Now the explanation of the first paragraph, you can realize from the first paragraph. An ancient story, एक पुरानी जैसे जैसे एक ये story बताई गई है. Now see, in this line the poet tells us that he is going to tell an old story about the famous king called King John. ये जो एक पोइट हमने कह रहा है कि हमने ओल्ड स्टोरी में आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये फेमस किंग जॉन के बारे में. He was very cruel and did little for the welfare of the people, and he did great wrong and maintained little right. He forced with man and with might, and he was famous as well as cruel king. और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी एक्सप्लेनेशन है अबाउट द फेमस किंग जॉन के बारे में बताया गया है. विद द फेमस किंग ऑफ इंग्लैंड. एक्चुअली दिस फॉर्म इज इन द बैलेट फॉर्म, बिकॉज बैलेट फॉर्म वी कैन से दैट शॉर्ट स्टोरी इज इन द वर्स फॉर्म. एक्चुअली वर्स फॉर्म मीन देयर इज द रिपीटेशन ऑफ लाइन्स, एंड बैलेट फॉर्म में वर्स फॉर्म, शॉर्ट स्टोरी इन वर्स फॉर्म को बैलेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज बैलेट फॉर्म में रिपीटेशन ऑफ लाइन्स होती हैं एंड आर्चिक और ओल्ड इंग्लिश वर्ड बिकम यूज्ड. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बैलेट फॉर्म के, जिसमें ओल्ड इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं और जो है रिपीटेशन ऑफ लाइन्स होती है. दैट वी कैन से दैट दिस फॉर्म इज इन द बैलेट फॉर्म. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ लेट्स सी second paragraph. And I'll tell you a story to Mary concerning the Abbot of Canterbury, how for his housekeeping and high renown they wrote post for him to fair London town. Now this is the second paragraph. I'll tell you a story to Mary concerning the Abbot of Canterbury, how for his housekeeping and high renown they wrote post for him fair London town. हाई renown कहते हैं रिस्पेक्ट को, हाउस कीपिंग मतलब अच्छा घर होना. एंड फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द किंग जॉन. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होल पैराग्राफ. In this line, the poet says that he is going to tell us a story about the Abbot of Canterbury. Now, poet is going to tell us about the Abbot of Canterbury, who was very famous because he had a beautiful house like palace, and he was so famous that post had been built for him while going from Canterbury to London. So this is all about the Abbot of Canterbury. And the first paragraph में हमने जो read out किया, it was about the King John. He was the famous king of England. Now in this paragraph we studied about the Abbot of Canterbury, and he was a very famous person, and he had a beautiful house like a palace, and he was so famous that even post had been built from while going from Canterbury to London. This is the explanation of the ballad from the second paragraph. And now let's move to the third. Now this is the third paragraph we are going to start. In 100 men did king would hear say, the abbot kept in this house every day, and 50 gold chain without any doubt, and velvet coat wetted the abbot about. Now this is the third paragraph. 100 men did king hear say, abbot kept in his house every day. King said that abbot के घर में जैसे 100 की तादाद में सर्वेंट होते हैं, 50 gold chain एंड उन्हें पहनी होती हैं वेलवेट कोट एंड वेटेड द एबट अबाउट. मीन्स एबट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस एंड रिच है, और किंग ने कहा कि उनके घर में इतने सर्वेंट होते हैं ये सब. नाउ सी दिस इज द एक्सप्लेनेशन. इन दिस लाइन पोएट टेल्स अस दैट किंग जॉन केम टू नो अबाउट द एबट, दैट एबट एंटरटेन 100 मैन लाइक इन हिज हाउस, एंड उनके घर में इतने जो हैं वो सर्वेंट हैं, और एंड एवरी डे एंड 50 सर्वेंट ड्रेस्ड इन वेलवेट, एंड जैसे ज़्यादातर जैसे उन्हें गोल्ड चैन वगैरह पहनी होती हैं, एंड वर रेडी फॉर हिज सर्विस.
ये सब जो है फेमस जो एबट के बारे में बताया कि उनके जो है इतने सर्वेंट हैं और गोल्डन चैन पहनते हैं, एंड दिस शोड दैट एबट वाज अ रिच एंड पावरफुल मैन, एंड दिस इज इंक्वायर्ड बाय किंग जॉन अबाउट द एबट, that abbot is a very rich man and is a house like palace, and every day like entertain 50 servant, and even servant they wear golden chains, and this all shows that abbot is a rich man, extremely rich man. So this is all about the abbot as inquired, as said by King John. Now let's move to the next paragraph. How now, Father Abbot, I heard it of thee. Thee means you. This is an old English word, archaic word, as I told you. Thou keepest is also archaic word. Thou keepest for a better house than me, and for thy housekeeping and high renown. I fear thou works the treason against my crown. Treason कहते हैं बगावत करना. Now these lines shows that king said to Abbot, now Father Abbot, मैंने आपके बारे में सुना है, आपके पास मुझसे भी अच्छा घर है, आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, आपका घर लाइक पैलेस की तरह अच्छा घर है, मुझे डर है आपने मेरे साथ बगावत की है, मेरे तख्त ताज के खिलाफ आपने बगावत की है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स मूव फर्दर एक्सप्लेनेशन. एंड नाउ सी इन दिस लाइन व्हाट पोएट सेज, वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन. पोएट सेज दैट किंग समन्ड द एबट, किंग ने जो है एबट को बुलाया अपने कोर्ट में, और उनने ये उनसे जो है पूछा हाउ ही कुड कीप अ बेटर हाउस देन द किंग. मतलब किंग से भी ज्यादा, जैसे मुझसे भी ज्यादा, वो कह रहा है कि किंग जॉन ने अपने बारे में बताया कि मुझसे भी ज्यादा जो अच्छा घर आपके पास है. द किंग टोल्ड हिम दैट फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड ग्रेट फेम, ये जो आपने शोहरत, आपने रेपुटेशन बनाई हुई है, ये जो आपके पास पैलेस और ये सब है, ही फियर्ड, मुझे डर है कि द एबट रिबेल्ड अगेंस्ट हिज क्राउन, आपने सब कुछ मेरे साथ बगावत की है. तो ये चीजें जो है, ये सब ने जो चीजें बताई किंग जॉन ने एबट के बारे में बताया. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Now another paragraph we are going to explain my liege. My liege कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है my lord. Quoth the abbot, quote करना, कहना. I would it were known, I never spend nothing but what is my own, and I trust you grace, I trust your grace will do me no dear. I trust your grace will do me no dear for spending of my own true gotten gear. ऑन ट्रू गॉटन गेयर कहते हैं ऑन अर्नड प्रॉपर्टी. ऑन ट्रू गॉटन गेयर कहते हैं अपनी कमाई हुई दौलत. ना इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है. माय लीज को द एबट, अब एबट ने कहा आई वुड इट वर नॉन, जो कुछ मेरे पास है वो मेरी अपनी दौलत है. आई नेवर स्पेंड नथिंग बट व्हाट इज माई ऑन, मैंने जो कुछ खर्च किया है अपने पैसे खर्च किए हैं. आई ट्रस्ट, मुझे यकीन है आपकी शान में मैंने कोई ऐसी जो है ऐसा कोई गलत काम नहीं किया. मैंने जो कुछ खर्च किया है अपने पैसे खर्च किए हैं फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ट्रू गॉटन गेयर, मेरी अपनी कमाई हुई दौलत है जो मैंने पैसे जो है खर्च किए हैं. Now further more detailed explanation of the whole paragraph. In these lines the poet says that Abbot answered the king. Abbot क्या कहता है अपनी सफाई में? Abbot कहता है कि he wanted to make it clear, मैं आपको जो है मतलब क्लियर बताना चाहता हूँ that whatever he spent, इन्होंने जो कुछ खर्च किया है was earned by honest means, मतलब ईमानदारी से कमाई हुई दौलत है, अपनी कमाई हुई दौलत है. It's my own true gotten gear. And he said that he hoped, मैं उम्मीद है कि that king would do him no harm, किंग कोई नुकसान नहीं मुझे पहुंचा सकता, बिकॉज ही हैड अर्नड हिज वेल्थ, उन्होंने अपनी दौलत कमाई है बाय ऑनेस्ट मींस, मतलब ईमानदारी से. तो इससे जो है इसलिए किंग जो है मुझे कुछ नहीं कर सकता. दैट इज द आंसर्ड बाय एबट. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. yes father abbot, yes father abbot, thy fault is high, and now for the same you needest must die. For except thou canst answer me question 3, thy head shall be smitten from thy body. Thy means your. It's old English word. Yes father abbot, your fault means thy means your. हाँ फादर एबट, आपने बहुत बड़ी गलती की है,
आपने अब इस गलती से जो आपने मेरे साथ, उनने किंग ने कहा जो बगावत किया, आपको जो है इस गलती की सजा मौत है, और अगर आप मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, द हेड शैल बी सिमिटेड फ्रॉम द बॉडी, आपका सर धड़ से अलग किया जाएगा। ये किंग ने जो है एबट को कहा। Now see further detailed explanation. In this line the poet says that after hearing the abbot reply, the king told the old man that his crime was unpardonable, for which the abbot was sure to be killed. If he failed to answer, his head would be cut off from his body. Now king said that your crime was unpardonable, मतलब ये केस की माफी नहीं है। आप जो है, और एबट को यकीन था कि वो मारा जाएगा अगर जो है उनकी सजा मौत होगी अगर वो आंसर नहीं दे पाया, उनका सर धड़ से अलग किया जाएगा, बिकॉज ये किंग ने कहा है। तो किंग ने जो है 3 सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि अगर आपने, किंग ने कहा कि अगर आपने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, देन योर हेड विल बी सिमिटेड फ्रॉम योर बॉडी। ये जो है हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी। नाउ लेट्स फर्दर मूव अनदर पैराग्राफ। एंड फर्स्ट ऑफ द किंग, जो पहला सवाल है वो ये है, व्हेन आई एम दिस इंस्टीड with my crown of gold so fair on my head among all my liegemen so noble of birth, thou must tell me to 1 penny what I am worth. Secondly, another question, tell me without any doubt how soon may I ride the whole world about. And at the third question, thou must not shrink, but tell me truly what I do think. Now these are the 3 questions that asked by King John. I again repeat, number 1 question ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि आई एम इन दिस स्टेट, इस हालत में किंग ने कहा कि मैंने सोने का जो है ताज पहना हुआ है मेरे सर पे, और मैं नोबल मैन, नोबल बर्थ और ये शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द व्हाट पेनी आई एम वर्थ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट गोल्डन क्राउन मी, मेरी जो है कीमत क्या होगी, और मैंने सोने का ताज पहना हुआ है, व्हाट वर्थ है माई, अंडरस्टैंड, और क्योंकि सोने का ताज पहना हुआ है और इज्जतदार लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, व्हाट वर्थ है माई, टेल मी। और सेकंड उन्होंने बताया कि आप मुझे जो है बगैर ये शक के ये बताएं कि पूरी दुनिया का सफर मैं कितने अरसे में तय कर सकता हूँ, हाउ सून आई मे राइड द होल वर्ल्ड अबाउट। और थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने कांपना नहीं है, आप ये मुझे बताएं अभी मैं क्या सोचता हूँ, What truly I do think, अभी मैं क्या सोचता हूँ, अभी मेरे जहन में जो है क्या चल रहा है। Now these are the 3 important questions asked by abbot, asked by king from the abbot. King ने abbot से सवाल किए। Now in this line the poet tells us again further detailed explanation. First question, as I told you, abbot ने कहा what was the price of in pennies while he was sitting among the courtiers, belonged to high families, aristocratic family, and was wearing a beautiful crown of gold on his head. Now second जो again मैं आपको repeat करवा देता हूँ, in this line the poet tells us about the second question asked by the king. The king wanted to know how soon he would be able to go around the whole world on his horse. और ये जो है third question जो उन्होंने पूछा, जो मैंने आपको बताया, third question ये exactly what you were thinking at that time. Now first question, as I told you, the king asked the abbot to tell him what was his price in penny. The second question, how soon he would be able to go around the world on his horse. Number third, abbot ने ये पूछा, किंग ने पूछा एबट से कि exactly बताएं what he was thinking at that time. Let's now another important explanation of the paragraph. पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Oh, these are the hard question for Marshal of it. No, I cannot answer your grace as yet. But if you will give me but 3 weeks space, I'll do my endeavor to answer your grace. Now 3 weeks space to thee will I give, and that is the longest time thou hast to live. For if thou does not answer my question 3, the land and the living are forfeit to me. Now let's explain. These are the hard question, as abbot said. Give me 3 weeks space. आप मुझे 3 हफ्तों की मोहलत दें। एंडिवर का मतलब स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी शान में आंसर देने की। Now King said, मैंने आपको 3 हफ्तों की मोहलत दे दी और यही आपके जिंदा रहने के लिए टाइम है। If you does not answer my question 3, अगर आपने मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, the land, आपकी जमीन और आपकी जान मैं आपसे छीन लूंगा।
Now again, let's see detailed explanation of these paragraphs. In this line, the poet says that on hearing the questions, अब देखें poet जो है, poet ने details में किस तरह जो है बताया है. King, the abbot was worried. Abbot परेशान हो जाता है. He told the king, king को कहता है कि those are very difficult questions. ये जो आंसर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके आंसर देना बहुत मुश्किल है for men of poor intelligence like him, and moreover he said that he could not answer answer him at once. मतलब फौरन जैसे हम कहते हैं ना एकदम जवाब देना, तो वो मैं नहीं दे सकता. Therefore he requested for 3 week time, 3 हफ्तों की मोहलत मांगना, 3 हफ्तों का टाइम मांग लेना, and said he would try to answer him, उनके आंसर देगा after that, like if you will give me 3 week space. Again, second paragraph explanation. We are going to explain this paragraph for now 3 week. In the given line, the poet says that king agreed to give 3 week time. King agree करता है, एबट को 3 हफ्ते की मोहलत देता है. Actually जो है ये वक्त मिल जाता है. And he told the abbot that it was the longest time for him to live. कह रहे यही आपके लिए जिंदा रहने का जो ये 3 हफ्ते हैं. He warned that if he failed to answer the question, अगर वो सारे सवाल के जवाब नहीं दे पाया, all his property would be forfeited. मतलब प्रॉपर्टी उनकी छीन ली जाएगी, and he would be killed. That is the warning from King John to Abbot. ये King John ने Abbot को warn किया. Now see again another paragraph. Away rode the Abbot, all sad at that word. Abbot परेशान होता है और and he rode to the Cambridge and Oxenford, but never a doctor there so wise that could with his learning and answer devise. Now let's explain this important paragraph. Like in the given line, the poet says that after hearing the questions of the king, poet कहता है कि जब ये king को क्वेश्चन किंग बताता है एबर्ट को, तो फिर एबर्ट जो होता है ये बिकम वेरी सैड, बहुत परेशान हो जाता है टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर उन्हें ढूंढने के लिए परेशान होता है. ही वेंट टू द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है. ये जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है. ही मेड मैनी वाइज मैन, वहाँ बहुत अक्लमंद लोग मिलते हैं. बट ही डिड नॉट फाइंड एनी स्कॉलर, ऐसा कोई स्कॉलर उन्हें वहां नहीं मिलता जो इनके आंसर जो है इन सवालों के जवाब दे सके और एबर्ट की परेशानी खत्म हो. तो ऐसा जो है स्कॉलर उन्हें कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता. Now another important explanation of the paragraph. Then home rode the abbot of comfort, so cold, and he made his shepherd going to fold. How now, my lord abbot, you are welcome home. What news do you bring us from good King John? Sad news, sad news, shepherd. I must give that I have but 3 days more to live. For if I do not answer him question 3, my head will be smitten from my body. Now let's explain in detail the explanation of these lines. Now what is the explanation of these lines? In the given line, the poet says the abbot become very sad. Abbot बहुत परेशान हो जाता है. When he could not find answer, जब उन्हें आंसर नहीं मिलते जो सवालात होते हैं. When he was coming, जब वो when he was coming back home, जब वो घर वापस जा रहा होता है, he made his shepherd who was going to the fold. जो चरवाहा होता है, जैसे कहते हैं चरवाहे होते हैं रास्ते में जो लोग बेल बकरियां लेके जा रहे होते हैं, तो शेफर्ड जो होता है वो एबर्ट को मिलता है.
शेफर्ड वेलकम करता है और अपने जैसे एबट जो मास्टर होता है उनसे पूछता है, मास्टर से व्हाट गुड न्यूज, यानी आप क्या खबर लाए किंग जॉन से, कौन सी गुड न्यूज है। अब ये फिर जो है एक्सप्लेनेशन जो इन लाइंस की, सैड न्यूज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस लाइन पुट सेज दैट, अब देखें क्या बताता है, आंसर ये देता है शेफर्ड आस्क्ड द एबट। जब शेफर्ड पूछता है तो एबट कहता है कि एक्चुअली इट्स अ सैड न्यूज, व्हाट न्यूज ही हैड ब्रॉट फ्रॉम किंग जॉन। जब पूछता है एबट कहता है, एबट क्या रिप्लाई करता है, एबट कहता है कि एक्चुअली दैट ही वेरी सैड न्यूज, उनके पास बहुत बुरी खबर है, ही हैड ओनली 3 days टू लिव, उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 दिन बच गए, बिकॉज इफ ही फेल्ड टू आंसर आंसर द किंग 3 क्वेश्चन, अगर वो किंग के 3 सवालों के जवाब देने में फेलियर गया, हिज हेड वुड बी कट ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी। ये जो है एज इट इज हकीकत जो है वो शेफर्ड को बताता है। एबट जो रास्ते में उनको मिलता है, जो चरवाहा होता है, उनसे पूछता है कि क्या खबर लाए आप गुड किंग जॉन से, तो ये सारी हकीकत करता है। नाउ let's move another important paragraph I'm going to explain. The first is to tell him there on that street. Now see, this is the repetition of line, same paragraph, same question जो किंग ने एबर्ट से पूछे थे, ये सेम क्वेश्चन जो है एबर्ट रिपीट कर रहा है, शेफर्ड को बता रहा है। जब शेफर्ड पूछता है कौन से सवाल, तो ये हमने पहला सवाल पूछा कि पेनीज में बताएं क्या मेरी वर्थ होगी। सेकंड हमने रीड आउट किया था कि दुनिया का सफर कितने अरसे में तय कर सकता हूं। दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। नाउ इफ यू मूव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द सेम एक्सप्लेनेशन जो हमने रिपीट, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम लाइन एंड सेम पैराग्राफ। ये सेम जो है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो लाइंस हैं वो एबर्ट जो है वो शेफर्ड को बता रहा है। जैसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये पूछा गया था, किंग पूछता है, जैसे वो बताता है कि एबर्ट कहता है कि जब किंग जानना चाहता है कि क्या इनकी जो प्राइस होगी पेनीज में, बिकॉज आई एम वेयरिंग ए गोल्डन क्राउन ऑन माई हेड एंड ये जो मैं नोबल मैन के दरमियान बैठा हुआ हूँ, तो ये क्या मेरी जो है वर्थ प्राइस जो है पेनीज में आप बताएं। अंडरस्टैंड, ये जो ब्यूटीफुल गोल्डन क्राउन जो है, क्राउन ऑफ गोल्ड पहना हुआ है, ठीक है, ताज पहना हुआ है जो सोने का। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम रिपीट करता है, एबर्ट जो है शेफर्ड को बताता है। और फिर सेकंड जो क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, उन दोनों क्या क्या पूछता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है और थर्ड क्वेश्चन, पहले सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम रिपीट करता है कि आप बताएं कि जो है वो रिपीट ये करता है शेफर्ड को कि किंग वांटेड टू नो हाउ सून ही वुड बी एबल टू राइड अराउंड द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सफर कितनी देर में वो कर लेगा, कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा। और थर्ड क्वेश्चन वो कहता है कि जब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो ये है कि आप मुझे क्लियरली बताएं व्हाट ही वाज थिंकिंग एट दैट टाइम। ये जो 3 सवाल होते हैं, सेम 3 क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ लाइन है, सेम क्वेश्चन शेफर्ड को जो है एबर्ट बताता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Now see another important explanation of the paragraph. ये जो 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, now cheer up sir Abbot, did you never hear yet that a fool even learn a wise man wit? Lend me your horse and serving man and your apparel, and I will ride to London to answer your quarrel. Nay, frown not, if it had been told unto me, I am like your lordship as ever may be. And if you will but lend me your gown, there is none shall know us at fair London town. Now these are the very important paragraph. इसमें ये बताया गया, now cheer up sir Abbot, शेफर्ड तसल्ली देता है एबर्ट को, कहता है खुश हो जाएं। आपने ये नहीं सुना है कभी कभार जो बेवकूफ होता है वो भी अक्लमंदी की बातें कर लेता है, sometime a fool may say some wise thing। आप अपना हॉर्स, अपने सर्विंग मैन और ये अपना जैसे गॉन और ये चीजें आप मुझे दें और मैं लंदन जाऊंगा आंसर देने। और वो कहता है कि एक्चुअली आई एम लाइक योर लॉर्डशिप, मैं आपका हम शक्ल हूँ, मतलब मेरी शक्ल आपसे मिलती जुलती है, रिजेंबल करता हूँ और ये हम ही जानते हैं, तो हमें लंदन में कोई नहीं पहचानेगा। मैं किंग को आंसर देने जाऊंगा, आपके जो 3 सवालों के जवाब हैं आप अपने हॉर्सेज और अपने सर्विंग मैन जो है मुझे दें। लाइक सेम अगेन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। He told Abbot not worry at all. Sometime a fool could talk about like a wise man, talk like a wise man. Or requested his master to lend him horse, servant and dress. Then he would to go to London and answer the question of the king. ये किंग जो है शेफर्ड जो है ये रिक्वेस्ट करता है एबर्ट से कि आप अपने हॉर्सेस, सर्वेंट वगैरह मुझे दें, मैं ही जाऊंगा किंग को जो है आंसर देने।
इन दिस लाइन अगेन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन जो मैं आप रीड कर रहा हूँ नाउ फ्राउंड आउट, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है? Shepherd requested the abbot not to feel angry. आप गुस्सा नहीं करें. He was told by the people that he resembled with the abbot. कह रहे हैं कि लोग ही जानते हैं कि मैं आपसे मतलब लोग जैसे कहते हैं और हम हमारी शक्ल मिलती जुलती है. आफ्टर वियरिंग हिज ड्रेस, जब मैं आपकी ड्रेस पहनूंगा, he requested the abbot to lend his gown, और ये जो चीजें आप मुझे दें. आफ्टर वियरिंग दैट, ये जो गॉन वगैरह मैं पहनूंगा, और nobody would रिकग्नाइज, हमें कोई नहीं पहचानेगा या मुझे कोई नहीं पहचानेगा कि ये जो है इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लंदन. तो ये जो है रिक्वेस्ट की शेफर्ड ने जो है एबट को. नाउ let's see what is the answer of Abbott. Now horses and serving men, now horses and serving men thou shalt have, with sumptuous array, most gallant and brave. कह रहे हैं horses serving men आपको मैंने दिए और ये आप बहुत बहादुर हैं, और with crozier, mitre, rocket and cop. ये जो सेरिमोनियल अटायर्स हैं ये यूज होते हैं, जो मतलब सेरिमोनियल अटायर का मतलब जो स्टाफ होता है ऑफिस का, जो कैप पहनते हैं, जो ये चीजें जो यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं क्रोजियर, माइटर एंड रॉकेट एंड कॉप. कह रहे हैं ये सब चीजें आपको फिट और सूट कर रही हैं. नाउ वेलकम सर एबर्ट. अब वहां पहुंच जाता है जो एबर्ट जो होता है किंग के पास पहुंच जाता है और उन्हें रिमाइंड करवाता है कि फॉर एंड इफ यू कांट आंसर माय क्वेश्चन 3, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, द लाइफ एंड द लिविंग बोथ सेव्ड शैल बी. सेम रिपीटेशन ऑफ लाइन्स हैं जो इसमें बताई गई हैं, मतलब ये सेम रिपीट करता है. क्वेश्चन जो है किंग जो है पूछता, कहता है कि आपको मैंने बताया, आपको याद होगा. इट मींस किंग ने शेफर्ड को नहीं पहचाना. अब देखें इसमें क्या बताया गया है. एबर्ट एग्रीड टू गिव द शेफर्ड, ये हमने रीड आउट किया कि एबर्ट एग्री कर देता है कि उनके सर्वेंट ड्रेसेस और ये जो हॉर्सेस वगैरह हैं ये मैंने आपको दिए, और स्मार्ट क्लोथ वगैरह सारी चीजें आपको दी. ही गेव हिम आल्सो हिज हैट, इज गॉन एंड इज लाइक क्लॉक. ये सारी चीजें उनको देता है शेफर्ड जो है को एबर्ट देता है शेफर्ड को. आफ्टर वेयरिंग दिस क्लोथ ही वुड बी टू फिट टू अपीयर बिफोर द पॉप. किंग के सामने जो है वो जा सकता है, बिकॉज सेम अपीयरेंस होगी, फिजिकल अपीयरेंस, तो किंग जो है नहीं पहचानेगा. एंड दिस लाइन द पोएट सेज दैट व्हेन द शेफर्ड अपीयर्ड बिफोर द किंग, जब वो जाएगा तो उन्हें नहीं पहचान पाएगा, और किंग वेलकम हिम, एंड किंग वेलकम करता है, किंग नहीं पहचान पाता. एंड सेड दैट इट वाज टू गुड that the abbot had come on the appointed day. वो कहता है कि सैम अच्छा हुआ आप उसी दिन आए जैसे मैंने आपको बताया था. अगर ये नहीं आ पता या नहीं आंसर देता तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चंस वगैरह जो हैं इसके आंसर आपको देने हैं. He added if he failed to answer his 3 questions, his life and property would be forfeited. कह रहे हैं कि आपकी जान मैं आपसे छीन लूंगा और आपकी प्रॉपर्टी आप अगर सही जवाब नहीं देते हैं. नाउ सी एंड फर्स्ट, पहला जो है रिपीट करता है सेम क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ लाइन्स हैं. एज मैंने आपको बताया था ये बैलेट फॉर्म है, इसमें रिपीटेशन ऑफ लाइन्स हैं. जो किंग जो है शेफर्ड को जो है पहला सवाल उन्हें रिपीट करता है कि आपको याद होगा मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर माई हेड, मैं लीज मैन मतलब नोबल बर्थ लोग हैं इनके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, तो व्हाट पेनी आई एम वर्थ, और ये मतलब मेरी जो है क्या जो है आप प्राइस लगाएंगे पेनीज में. ये जो क्वेश्चंस जो सेम रिपीट करता है किंग जॉन जो है शेफर्ड को बताता है. तो फिर जो है जब शेफर्ड अपीयर्ड होता है सेम एक्सप्लेनेशन है. वाइज ऑफ द एबर्ट द किंग रिपीटेड द लाइक इज फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमने पढ़ा कि पहला क्वेश्चन जो है किंग रिपीट करता है. वो एबर्ट से पूछता है कि लाइक अमंग द नोबल मैन, और ये जो मैं इन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, गोल्डन क्राउन पहना हुआ है, ब्यूटीफुल गोल्डन क्राउन, तो जो है पेनीज में मुझे बताएं व्हाट पेनी एम आई वर्थ. तो ये जो है
हमने रीड आउट किया सेम रिपीटेशन ऑफ लाइन्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एज अटर्ड बाय किंग टू शेफर्ड. Now see what is the important. Now see another important paragraph we are going to start. For 30 pence Xavier was sold among the false Jews, as I've been told, and 29 is the worth of thee, for I think thou art 1 penny worse than he. Now this is the first answer from the king, from the abbot, abbot means शेफर्ड की तरफ से. सारी शेफर्ड ने ये आंसर दिया है किसको? किंग जॉन को. जो हम शक्ल है एबट का, एबट यहाँ नहीं है, किंग की जगह किंग को आंसर दे रहा है, एबट की जगह कौन दे रहा है? शेफर्ड आंसर दे रहा है. ठीक है. The king laughed and swore by the sand beetle, I did not think I had been worth so little. Now secondly, tell me without any doubt how soon I may ride the whole world about. Now see first answer जो दिया है वो क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. Now see in this line the poet tells us about the answer given by the शेफर्ड. जो इन लाइंस में जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं इसमें आंसर जो शेफर्ड ने दिया वो आंसर बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन का. दैट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था, शेफर्ड किंग को ये बताता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, दैट ही हैड हर्ड दैट Jesus Christ was sold among the false Jews for 30 pence, 30 penny or pence. Therefore, the price of the king would be 29 pence, means 1 penny less than 30 pence means 29 pence. First answer is 29 pence. Now another explanation of the paragraph in this line, the poet says that the king felt very happy. King बहुत खुश हो जाता है and laughed और मुस्कुराता है when he heard the answer to his first question. जब पहले क्वेश्चन का आंसर सुनता है. He swore by sand beetle, sand beetle की कसम खाता है, and said that और कहता है कि he would never thought, इसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, that his price would be so little, इतनी कम आप कीमत बोलेंगे. Then he repeated his second questions, और फिर जो है सेकंड सवाल जो है वो बताता है और पूछता है जैसे हमने पढ़ा था कि how soon may I ride the whole world about, पूरी दुनिया का सफर में कितने अरसे में जो है तय कर लूंगा. This is like the second question repeated by king. Now this is the explanation. We are going to read. पहला ये पैराग्राफ जो है ये लिखा हुआ, you must rise with the sun and ride with the same until the next morning rises again, and then your grace need not make any doubt, but in 24 hours you will ride the whole about. This is the answer, second answer. In 24 hours you will ride it about. 24 hours में आप दुनिया का सफर तय कर लेंगे. और फिर किंग मुस्कुराता है, and swore by Saint John, I did not think it could be done so soon. Now from the third question, और फिर third question पूछता है, but tell me here truly what do I think, what I do think. अब explanation इसकी second answer का आंसर क्या दिया. Second question of the king given by the shepherd, जो आंसर होता है shepherd का. The shepherd told the king that he should get up with the sunrise, सूरज निकलने के साथ आप उठें, जगें और ride his horse at the same time, उसी सूरज निकलने के साथ आप अपना सफर शुरू करें. He told him to continue riding, आप अपनी राइडिंग कंटिन्यू रखें until the sun rose again next morning, जब दोबारा दूसरे दिन सूरज दोबारा when the sun rises from the east next day. ये जो 24 आवर का ड्यूरेशन होता है, अगर जो है आप उसी स्पीड के साथ आप सफर शुरू करते हैं और अपने जब नेक्स्ट डे दोबारा सनराइज होता है, then you should not be in doubt that, उनके कोई शक नहीं होगा that you'd be able to ride around the whole world only in 24 hours. That is a very smart answer. Like 24 hours, in 24 hours you can travel the whole world about. उसके बाद ब्रीफ थर्ड क्वेश्चन जो है, पहले किंग मुस्कुराता है और सेंट जॉन की कसम खाता है, कहता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने जल्दी मैं दुनिया का सफर तय कर सकता हूं. और फिर यही रिपीटेशन जो है थर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि but tell me here truly what I do think. Now explanation is swore by the Saint John and said that he had
नेवर थॉट, इन्होंने पहले सेंट जॉन जो होता है ना, इसका कसम खाता है किंग जॉन, कहता है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो जो है इतना जल्दी दुनिया का सफर कर लेगा, दुनिया का सफर तय कर लेगा 24 आवर। और वो रिपीटेड थर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो है मैं मतलब क्या सोच रहा हूं। टेल हिम व्हाट ही वाज थिंकिंग एट दैट टाइम। Now let's read out important paragraph. Yes, that shall I do, and make your grace merry. You think I am the abbot of Canterbury, but I am his poor shepherd, as plain you may see, that am come to beg pardon for him and for me. Now let's see the explanation. Now this line post telling us reply of the shepherd to the third question. Third answer क्या दिया है? The shepherd told the king, shepherd king को बताता है that he would answer him and make him happy. वो उन्हें खुश करेगा और आंसर देगा. King को ये बताता है कि what he was thinking, that he was talking to the abbot of Canterbury, but in fact he was not the abbot but his poor shepherd. The shepherd begged the king pardon for himself as well as for master. देखें ये थर्ड आंसर की एक्सप्लेनेशन है. थर्ड आंसर ये कि करें आप ये थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं जो है एबर्ट हूं, और आप एबर्ट से बात कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं मैं एबर्ट हूं, बट आई एम नॉट एबर्ट, मैं एबर्ट नहीं हूं, बट उसका हम शक्ल हूं, शेफर्ड हूं. अंडरस्टैंड? थर्ड का आंसर ये दिया कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एबर्ट हूं, बट मैं एबर्ट नहीं, शेफर्ड हूं, जो किंग का हम शक्ल हूं, सॉरी एबर्ट का हम शक्ल हूं. उन्होंने कहा कि थर्ड आंसर ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एबर्ट हूं, बट मैं एबर्ट नहीं हूं, बट मैं उनका हम शक्ल शेफर्ड हूं. तो जब ये आंसर किंग सुनता है और उसके बाद वो कहता है कि आप जो है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, किंग को कहता है कि आप जो है माफ कर दें एबर्ट को माफ कर दें, और एबर्ट नहीं आ पाया आंसर देने. नाउ लेट्स सी द लास्ट explanation of these two paragraphs, important explanation of these lines. King मुस्कुराता है और swear by the mass I'll make you the Lord Abbot to this day and place. Now Nemali is not such speed for a lock and can neither write nor read. 4 nobles a week then I will give thee. For this merry jest thou hast shown to me, and tell the old abbot when thou comes home, thou hast brought him a pardon from good King John. In this line, the poet says that King laughed when he heard the answer to his third question. Third question का आंसर सुनता है तो किंग जो है मुस्कुराता है और ईश्वर कसम खाता है. And told the shepherd को कहता है कि that he would appoint him the abbot of Canterbury instead of old abbot. Instead of old abbot का मतलब abbot की जगह पे मैं आप abbot बनाऊंगा. And but the shepherd requested him not to be in hurry. कहना हम जल्दबाजी ना करें. shepherd ने कहा because जल्दबाजी इसलिए न करें बिकॉज ही वॉज इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं था. शेफर्ड एंड ही कुड नाइदर रीड नॉर राइट, कह रहे मैं ना लिख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ. उसके बाद ये जो फिर किंग जो है क्या कहता है, किंग कहता है नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन 4 nobles a week then I'll give thee. Poet says that when the shepherd told him that he was illiterate, जब शेफर्ड कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं लिख पढ़ नहीं सकता और could not run the office of the abbot, जब मैं सब कुछ बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं तो it means I could not run the office. The king said that he would pay him 4 nobles every week. मतलब every week 4 noble जो है उन्हें प्राइज के तौर पे देना, वो मतलब जैसे इनाम देगा. because he had made him happy, आपने मुझे खुश किया है, किंग ने कहा. he told the shepherd to inform the abbot, कह रहे हैं आप एबर्ट को ये बताइएगा that the king had granted him pardon, किंग जॉन ने आपको माफ कर दिया है. तो दैट्स इट फ्रॉम द फॉर्म एबर्ट ऑफ कैंटरबरी. होपफुली आपको ये पूरा फॉर्म समझ में आ गया होगा. थैंक यू.